Students, today we are going to start the second topic of Python programming. In previous topic we have learned that how to open a Python program, what are the different modes in Python program. Okay, now in this topic we learn the different terms used in a Python program. Now here is the first question is, what is token? Basically, token is the smallest individual unit that we use to write a program is called token. It means the keywords or the terms or the words that we use to write a Python program. Every keyword, every word are called tokens. Let's take an example. Here I have written some codings, the addition of two numbers. Here the all words, all keywords, all variables, all operators together says tokens. Okay, that means this float is a token, this input is a token, this a is a token, this plus sign is a token, this equal to sign is a token, this parenthesis, that is this small bracket, is a token, this semicolon is a token. It means that everything that we use to write Python program are called token. Clear? Now the second question is, what is keyword? So basically students, keywords are some special meaning reserved by Python program or any computer language. That means keywords are the special word that we use to execute some specific task. Every computer language have its own keyword that we use to execute a particular task. As an example, in this programming we see that float, input, print, these are the keywords. And what are their functions? Float, it's indicate that the integer you have to take is floating type, that means it is decimal type. This input statement, this input keyword identifies that user can take input with keyword with keyboard. This print keyword is specified that the word written in print statements are going to be published on output screen. That means every keyword has some special characteristics. That means every keyword has some inbuilt task. Okay. Now the second question is, what is identifier? Identifiers are fundamental building blocks of a program and are used as the general terminology to different parts of program. It means identifiers क्या होते हैं? ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं ये। मतलब जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सब जो है आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो वेरिएबल्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्लास हो गए,
ये सारे क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिख लिया है ए क्या हो गया, एक तरह का आइडेंटिफायर हो गया। दैट मीन्स कि आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स नेम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, किसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, कौन से क्लास, जैसे ये फ्लोट, ये जो नंबर है किस क्लास का है, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू, तो इसका क्लास क्या हो गया, फ्लोट। तो क्लासेस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद डिफरेंट लिस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दैट इज लिस्ट, डिक्शनरीज, इनको आइडेंटिफाइज करता है आइडेंटिफायर्स। ठीक, तो आइडेंटिफायर्स क्या हो गए, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ देयर आर सम गाइडलाइंस टू क्रिएट आइडेंटिफायर। किसी भी प्रोग्राम में आपको जब आइडेंटिफायर, सपोज आपको आइडेंटिफायर या फिर आप बोल लीजिए वेरिएबल, अगर आपको असाइन करना होता है, लिखना होता है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। उस रूल्स को पे ही आप एक आइडेंटिफायर को लिख सकते हैं। विदाउट दैट रूल्स अगर आप चाहेंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर आता है। ठीक, तो यहाँ आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, आइए हम देखते हैं और उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे क्या वो सही है या गलत। तो फर्स्ट है एन आइडेंटिफायर्स कंटेन अल्फाबेट in capital or small letter A to Z, okay, or numbers, or it is the combination of alphabet and numbers, that is 0 to 9, okay। मतलब कि एक आइडेंटिफायर का पहला रूल हो गया कि एक कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का। अगर आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ नंबर का यूज़ आप नहीं कर सकते हो आइडेंटिफायर को असाइन करने के लिए। आप अगर आइडेंटिफायर को असाइन करना चाहते हो, लेना चाहते हो कोई आइडेंटिफायर, तो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स देने होंगे, या फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन दीजिए, बट आप सिर्फ न्यूमेरिक, सिर्फ नंबर्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिफायर देखिए, आइडेंटिफायर्स में क्या मैंने बोला था, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो वेरिएबल्स में चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देते हैं कैपिटल में, इसको लिखते हैं A2S। ठीक, एक तरह का ये है, तो यानी ये सही होना चाहिए, अगर गलत होगा तो एरर आएगा। मैंने रन किया तो नहीं, एरर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या है, सही है। सेकेंड रूल क्या होता है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे, किसी भी आइडेंटिफायर के फर्स्ट पोजीशन पे आप कोई भी नंबर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A2S लिखा है, अगर मैं इस 2 को यहाँ ना लिखकर मैं लिखूँ अगर एकदम फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ, तो ये मेरा एक तरह का सिंटेक्स एरर आएगा। अब जब मैं इसे रन करता हूँ, क्या, इनवैलिड सिंटेक्स। दैट मीन्स आप फर्स्ट पोजीशन पे किसी डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। Now the third case, in identifier we never use any special character except underscore। मतलब किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने में हम कभी भी किसी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम इस हैश का यूज़ नहीं कर सकते, इस परसेंटेज का यूज़ नहीं कर सकते, इस स्टार का यूज़ नहीं कर सकते, इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते। ये सभी क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इस @ का यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। एक पता है एक ऐसा होता है, एक ऐसे वाला साइन होता है माइनस जैसा, आप जब शिफ्ट बटन प्रेस करके
उसी बटन को प्रेस करोगे तो एक ऐसा साइन आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। ओके, तो आप सिर्फ एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ये वाकई में सही है। तो हम एक स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं $, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर देता हूँ तो देखिए अब क्या होता है, एक सेकेंड, आओ यहाँ पे मैंने नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे दिया है, इसी वजह से ये हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, ठीक, Ctrl+S F5, रन हो रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक। ये एरर्स आ रहे हैं, ए क्यों इसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पे सिंपल क्या है कि वो मैंने वेरिएबल नेम वहाँ चेंज किया, बट ए का वैल्यू तो चेंज नहीं किया, और मैंने तो वहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज़ जो ए फॉर्मूला है उसको, उसमें ए को ए ही शो किया है, बट यहाँ तो मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया ना, इसीलिए वो रिजल्ट गलत आ रहा है। खैर वो मैं कोडिंग्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से मैं बताऊंगा कि कोडिंग्स को कैसे करते हैं पाइथन में। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा थर्ड टर्म कि हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और फर्स्ट पोजीशन पे हम किसी भी डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल नेम को लिखने के लिए। उसके अलावा आप वेरिएबल नेम को लिखने के लिए स्मॉल लेटर का यूज़ करो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज़ करो, या फिर सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज़ करो, नंबर्स का यूज़ करो। स्पेशल कैरेक्टर का अगर यूज़ करना है तो सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ करो। आप कोई स्पेस भी नहीं दे सकते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे AS स्पेस BS, तो ये भी एक तरह का इनवैलिड होगा, देखिए, क्योंकि स्पेस जो होता है वो भी एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर होता है, नल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं हम, तो वो भी हम नहीं दे सकते, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं। और एक लास्ट रूल है आइडेंटिफायर को असाइन करने का, लिखने का। वो रूल क्या है कि आप किसी भी कीवर्ड को, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनपुट, तो इनपुट को आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, ठीक। अगर लेंगे तो एरर आएगा। देखिए मैं इसको लिया हूँ, तो अब आप F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सपोज टू, तो देखिए क्या है, इनपुट फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मतलब एक क्या है, एक तरह का आपका क्या है, एक वैल्यू है, मतलब एक तरह का कीवर्ड है। कीवर्ड को हम यूज़ ही नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक। तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं, उसको हम एज ए आइडेंटिफायर्स, एज ए वेरिएबल नेम बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब आप कोडिंग लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या क्या ऐसे कीवर्ड हैं जिसको हम नहीं ले सकते हैं। ऑटोमेटिक उनका कलर में चेंजमेंट आ जाता है। अगर वो वेरिएबल सही रहेंगे तो आपका वाइट कलर में उसका रिटर्न टेक्स्ट आएगा, और अगर सही नहीं रहेगा तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो एक कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं अगर आपको वेरिएबल नेम असाइन करना हो। पहला कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, या फिर डिजिट्स 0 to 9 तक का हो सकता है। सेकेंड कि फर्स्ट पोजीशन पे किसी भी हम डिजिट को प्लेस नहीं करेंगे वेरिएबल नेम में। थर्ड कि स्पेशल कैरेक्टर, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे वेरिएबल नेम में, सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, वो चाहे फर्स्ट पोजीशन पे करें, चाहे लास्ट पोजीशन, या फिर मिडिल में कहीं पे भी, ठीक। और लास्ट फोर्थ नंबर है कि किसी भी कीवर्ड का यूज़ हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दिस आर कॉमनली टर्म एज कांस्टेंट। तो ये क्या होते हैं लिटरल्स? जो हम वैल्यू
यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सपोज एरिथमेटिक ऑपरेशन में जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और अ सिंगल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उसे मैं फिर से बताऊंगा आपको, ठीक। तो वो क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक वैल्यू जो ले रहे हो, यहाँ पे तो मैंने फिक्स नहीं किया है वैल्यू को, क्योंकि यहाँ तो इनपुट हम ले रहे हैं तो यूज़र वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a इक्वल टू 5, तो ये 5 क्या हो गया? एक तरह का लिटरल है जो अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। और एक चीज़ कि 5 किस तरह का लिटरल है? तो ये क्या है? 5 नंबर है, तो एक तरह का इंटीजर लिटरल है। दैट मीन्स कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स, लिटरल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब लिटरल्स और कांस्टेंट बोथ आर द सेम थिंग्स। तो कांस्टेंट्स यानी कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट्स, दैट मीन्स फ्लोटिंग लिटरल्स। तीसरा होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर स्ट्रिंग लिटरल बोल लीजिए। फोर्थ होता है आपका कैरेक्टर लिटरल्स। चलिए वन बाय वन इन सबको देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लेते हैं इंटीजर लिटरल्स। तो यहाँ पे इंटीजर लिटरल्स को हम कैसे लेते हैं? तो इसके लिए हम लेने के लिए सिंपल एक वेरिएबल नेम a, और यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो एक तरह a क्या हो गया? 45, एक तरह का इंटीजर लिटरल हो गया। अब फ्लोट लिटरल क्या होता है? सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे c इक्वल टू 4.5, तो ये 4.5 मतलब जितने भी डेसिमल न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो सारे क्या होते हैं? फ्लोट लिटरल्स। और इंटीजर लिटरल्स में भी सेम टू सेम, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट विदाउट डेसिमल होने चाहिए, तो क्या हो जाएंगे? इंटीजर लिटरल्स। ओके। थर्ड है आपका कैरेक्टर लिटरल्स। क्या होते हैं? जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया और वहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में किसी एक अल्फ़ाबेट को लिखा। सपोज मैंने लिखा G, तो G क्या है? एक तरह का कैरेक्टर लिटरल है, सिर्फ एक कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टर लिटरल्स या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। और इसे हमेशा हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिटरल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स इज ए स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ASHI, ठीक, इसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। इसके बाद तो ये क्या हो गया? E एक तरह का, मतलब आशी जो वैल्यू है वो हो गया एक तरह का स्ट्रिंग लिटरल या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया आपको? अब देखिए एक चीज, पाइथन में जो ये कैरेक्टर लिटरल आप देख रहे हैं, इसको स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए एक चीज और देखते हैं कि ये वाकई में क्या ये सारे वही लिटरल्स हैं, मतलब इनका नाम क्या वही है? तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के लिए इंटरेक्टिव मोड में वर्क करते हैं। पाइथन का जो इंटरेक्टिव मोड होता है वहाँ पे हम वर्क करते हैं। तो हम पाइथन का इंटरेक्टिव मोड को ओपन कर लेंगे। जाएंगे हम पाइथन एप्लीकेशन IDLE, एक सेकेंड, यहाँ पहले से ओपन है, इसी वजह से मैं सबको डिलीट करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ।
यहाँ गए स्टार्ट बटन, सर्च PYTHON पाइथन IDLE। तो ये आया आपका पाइथन सेल, दैट इज इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। इसका यूज़ होता है किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करने वाले थे कि लिटरल्स का जो नेम है, इंटीजर लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, फ्लोट लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो वाकई में क्या वही, उनका नाम क्या वही है। तो चलिए देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, वहाँ पे मैंने लिखा 5, एक तरह क्या है, इंटीजर लिटरल है। तो इसका वैल्यू, इसका जो टाइप शो करना चाहिए, इसका जो क्लास शो करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इंट। इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है इंट, इंटीजर को इंट बोला जाता है। ठीक, जब हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे PYPE, मतलब इसका टाइप जानना है हमें, टाइप A, मतलब A का टाइप क्या है। तो देखिए क्या लिख रहा है, क्लास इंटीजर, दैट मीन्स एक तरह का, किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अब देखते हैं फ्लोट। तो फ्लोटिंग जो लिटरल्स होते हैं उनका जो शॉर्ट फॉर्म उसका होता है फ्लोट। ठीक, इसको देखते हैं। पहले हमको एक वैल्यू लेना होगा, सपोज A इक्वल टू 4.5, एक तरह क्या हुआ, ये फ्लोट लिटरल हो गया। अब हम इसका टाइप देखते हैं क्या है, टाइप A। देखिए क्लास क्या शो कर रहा है आपका, फ्लोट, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है एक तरह का फ्लोटिंग वैल्यू है। अब आइए देखते हैं स्ट्रिंग। मैंने लिया फिर से A इक्वल टू ABCD TYPE टाइप A। देखिए क्या शो कर रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे str लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे str लिखा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर हम सिंगल एक कैरेक्टर को अगर सिंगल इन्वर्ट या डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लिटरल्स, बट पाइथन में उसे हम यहाँ पे शो करता है एज ए स्ट्रिंग। ठीक, चलिए देखते हैं वाकई में ऐसा होता है क्या। तो A इक्वल टू सिंगल इन्वर्ट कॉमा में हम लिखते हैं सपोज C इंटर TYPE टाइप A। ठीक, क्या शो कर रहा है, क्लास str, दैट इज स्ट्रिंग। तो यहाँ हमने देखा क्या कि कितने टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स यानी लिटरल्स यूज़ किए जाते हैं एक पाइथन प्रोग्राम में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो क्या है, ऑपरेटर्स। तो पाइथन में ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिनका इनका फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स आर द टोकन्स, ऑब्वियस इसको टोकन बोलेंगे कि मैंने अभी बताया था आपको कि टोकन्स क्या होते हैं, जितने भी हम कीवर्ड, जितने भी ऑपरेटर्स वेरिएबल्स नेम यूज़ करते हो सारे क्या होते हैं, टोकन्स। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट डज कंप्यूटेशनल और कैलकुलेशन विथ अ गिवन वैल्यू। मतलब इसका क्या फंक्शन होता है कि ये कोई भी कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है, कोई भी कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है ये ऑपरेटर। अब पाइथन में ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर बोला जाए तो ऑपरेटर्स, आप अगर बेसिक मेन जो है वो क्या क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो 3 ऑपरेटर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा है यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं आपके प्लस साइन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स एक्सपोनेंट, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक, तो ये सारे क्या हुए, एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं जैसे ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सारे क्या हो गए, रिलेशन को आइडेंटिफाइज करते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, वो होते हैं एंड,
और नॉट, ये जो तीन बेसिक होते हैं, ये क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। इनका यूज़ क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में किसी कंडीशन को चेक करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक एक के बारे में मैं यहाँ पे इस इंटरेक्टिव मोड में ही आपको बताऊंगा, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट के लिए सही है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं। सिंपल आपको अगर मैं बताऊं, एरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लस से तो प्लस होना चाहिए। चलिए फिर भी देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, इसके बाद एक वेरिएबल लिखा c इक्वल टू a प्लस b, इसके बाद इस वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, प्रिंट c। देखिए वैल्यू आ गया इसका 11, दैट इज ये क्या है, एक तरह का प्लस, एक एरिथमेटिक ऑपरेशन है। वैसे ही माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे होते हैं। अब यहाँ चीज़ और अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे डिवीज़न का जो फंडा है यहाँ अलग है। चलिए देखते हैं उसे, एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाते हैं उसे। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, और यहाँ लिखते हैं c में इनका डिवीज़न a बाई b। अब वैल्यू प्रिंट करते हैं, प्रिंट c, 3.5 इसका वैल्यू आया। ठीक। अब एक चीज़ होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपको कोशेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए रिमाइंडर। क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो उसके लिए एक ऑपरेटर यहाँ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसका फंक्शन होता है कि ये सिर्फ रिमाइंडर को ही शो करता है, जो कोशेंट आता है उसे शो नहीं करता है। जैसे इस वाले में देखिए a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 2, यहाँ अगर इसको हम डिवीज़न करते हैं तो इसका कोशेंट कितना आता है, 1 आता है। तो ये सिर्फ 1 को ही शो करेगा। चलिए देखते हैं वो ऑपरेटर कैसा होता है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं c में यहाँ लिखते हैं d इक्वल टू a, मॉड्यूल का साइन देखिए कैसा होता है, जस्ट लाइक अ परसेंटेज। इसका साइन होता है एकदम परसेंटेज की तरह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइथन में, मॉड्यूल। ठीक। तो अगर हम लिखते हैं a मॉड्यूल b और उसके बाद इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट d, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये मॉड्यूल जो है इसका फंक्शन है रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना। गॉट इट। अब एक और स्पेशल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, जिसका वर्क है एक्सपोनेंट। दैट मीन्स पावर, किसी भी नंबर का पावर। जैसे हम बोलें अगर कि 8 का पावर 3 कितना होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ किया। जैसे हमने यहाँ लिखा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। अब हम उस पावर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, c इक्वल टू a डबल मल्टीप्लिकेशन साइन। याद रखिए ये जो डबल मल्टीप्लिकेशन साइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एरिथमेटिक ऑपरेटर। मतलब इसका एक्सपोनेंट, पावर लिखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a मल्टीप्लाई b, मतलब a का पावर है 4, तो वैल्यू कितना आना चाहिए इसका, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 16, राइट ना। तो इसका वैल्यू आना चाहिए 16। अब इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट c, 16 आ रहा है। यानी इस ऑपरेटर का फंक्शन क्या है कि आपको पावर का शो करता है, मतलब कितना अगर पावर हम देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक। अब देखिए पाइथन में एक स्पेशल एक कीवर्ड होता है पावर को फाइंड आउट करने का।
अगर आप ऑपरेटर का यूज़ ना करें तो सिर्फ उस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें POW पाव 2 का पावर 4 तो वैल्यू आ गया देखिए 16। तो एक क्या होता है, पावर एक स्पेशल कीवर्ड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर किसी भी वैल्यू का हम एक्सपोनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम सिंपल अगर ऐसे भी लिखते हैं a इक्वल टू 2 टू द पावर 3 तो भी ये वर्क करेगा, देखिए तो भी ये वर्क करेगा। तो ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो जिसमें स्पेशल जो हो गए ए मॉड्यूल ऑपरेटर, फिर ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका प्रोग्राम में भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। ओके, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिवीज़न जो है किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर का जो होल नंबर्स होते हैं उनका डिवीज़न जब करते हैं तो उनका टोटल वैल्यू आपका शो कर रहा था, बट प्रोग्राम में उनका वैल्यू टोटल शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए इस मैटर को हम जब कोडिंग करेंगे तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या क्या होते हैं, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे क्या हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो सपोज मैंने यहाँ एक रिलेशन लिखा 4 लेस देन 2, ये क्या कंडीशन सही है, क्या 4 लेस होता है 2 से? नहीं, तो इसका रिजल्ट कहना चाहिए फॉल्स। देखिए फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो आपका ट्रू वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, या फिर ट्रू के साथ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होता है। मतलब बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ रिलेशन को शो करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 6 ग्रेटर देन 4 तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इनका यूज देखिए कैसे होता है। तो एक सिंपल मैं टेस्ट मॉड्यूल लिख रहा हूँ, आप उसे देखिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इफ 8 greater than 4 and 7 greater than 5, print yes, else print no। ओके, अच्छा ये जो मैं कोडिंग्स लिखा हूँ शायद आपको अभी समझ में ना आए, ये बस मैं एज ए एग्जाम्पल मतलब एंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं उसे बस शो करने के लिए इस कोडिंग को मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या किया है, मैंने एक कंडीशन लिखा है कि इफ़ अगर 8 जो है 4 से बड़ा है एंड 7 जो है 5 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन ही तो ट्रू है, दोनों कंडीशन ही ट्रू है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो आप यस प्रिंट कीजिए और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते हैं, कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप नो प्रिंट कीजिए। मतलब बेसिकली एंड ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है कि एक कंडीशन
जो है दोनों को ये चेक करता है, दो कंडीशंस को ये चेक करता है। अगर दोनों ट्रू हुए तो ही ये ट्रू वाले जो स्टेटमेंट, ट्रू के साथ जो स्टेटमेंट है उसको, यानी पहले वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। और अगर इनसे कोई भी एक अगर जो कंडीशन है गलत हो जाता है तो एल्स के साथ जो कंडीशन है, स्टेटमेंट है, उसको ये प्रिंट करता है। तो इस केस में क्या है कि ये दोनों कंडीशन ही मेरे क्या है, ट्रू है। तो जब हम यहाँ पे हम इंटर जब प्लेस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, यस। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट जो है इसके साथ ट्रू है, तो ट्रू के साथ पहला स्टेटमेंट यानी एल्स जो है ए प्रिंट होगा। अगर रॉन्ग होता तो नो प्रिंट होता। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस किए तो क्या शो कर रहा है, यस। दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम सही है। अब चलिए थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इफ 8 greater than 4 and 4 greater than 5, print yes, else print no। हाँ, तो अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, हम एंड ऑपरेटर का यूज़, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल के लिए हम ग्रेटर देन साइन का यूज़ कर रहे हैं। अब इस वाले कंडीशन में जो है कि 8 जो है 4 से बड़ा है, ये तो ट्रू है। बट इस कंडीशन में क्या है, 4 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, ये तो फॉल्स है। तो इस हिसाब से क्या है, दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन गलत होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है, एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है वो वाला प्रिंट होता है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या आया रिजल्ट, नो। दैट मीन्स एंड ऑपरेटर का क्या फंक्शन हुआ कि दोनों कंडीशंस को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुए तो आपका स्टेटमेंट ट्रू वाला जो है वो प्रिंट होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स शो करता है, दैट इज फॉल्स के साथ जो स्टेटमेंट है उसको शो करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं और ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल जैसे एंड का यूज़ किए वैसे ही हम और का भी यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक कंडीशन भी अगर मेरा सही रहा, दोनों सही रहे तो कोई बात नहीं, पर अगर दोनों में से कोई एक भी अगर सही रहा तो हमारा वैल्यू ट्रू होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे इफ 8 greater than 5 और 5 greater than 8, print yes, else print no। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखिए 8 greater than 5 है, ये तो ट्रू है। 5 greater than 8 है क्या, नहीं, 5 तो greater than 8 नहीं है, दैट इज एक कंडीशन तो ट्रू फॉल्स है। बट और ऑपरेटर का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या चेक करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है। अगर कोई भी एक ट्रू है तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका रिजल्ट आएगा वो ट्रू के लिए आएगा। तो यानी अभी आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, देखिए यस आ गया। तो भले यहाँ दूसरा कंडीशन में रॉन्ग है बट मेरा आंसर यस आ गया। तो समझ में आया आपको कि इस ऑपरेटर का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर, इनका यूज़ कैसे करते हैं। देखिए नॉट को हम स्पेशली बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे जैसे हम दो कंडीशंस को यहाँ चेक कर रहे हैं बट उसमें क्या होता है सिर्फ एक ही कंडीशन हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, एज एग्जांपल लिखते हैं अगर हम इफ नॉट 8 equal to 8,
सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना होगा ऐसे, इफ नॉट 8 इक्वल टू 8 प्रिंट यस, else print no। अच्छा, अब देखिए इस वाले कंडीशन में हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नॉट एक तरह का यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब इसके लिए दो कंडीशंस चेक नहीं करता है। मतलब ये ऐसा कंडीशन है कि अगर कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो फॉल्स वाला वैल्यू शो करता है। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा कंडीशन है 8 इक्वल टू 2, मतलब 8 जो है बराबर है 8 के। अब देखिए यहाँ मैंने सिंगल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि सिंगल एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल में, और जो डबल इक्वल टू है ये शो करता है कंडीशनल एक ऑपरेटर का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या शो कर रहा है आपका कि 8 इक्वल टू 8, तो ऑब्वियस 8 तो 8 से इक्वल होता ही है। पर ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि नॉट, मतलब ये जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, वाकई में ऐसा है नहीं, ये तो इक्वल है। दैट मीन्स कि इस नॉट के हिसाब से इसको प्रिंट करना चाहिए, यस को प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये जो है कंडीशन मेरा 8 इक्वल टू 8 ये गलत है, बट ये तो सही है। तो नॉट के साथ हमेशा याद रखिएगा कि नॉट में अब अगर आप ट्रू वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा इस एल्स के साथ जो वैल्यू है, दैट इज ये जो फॉल्स वैल्यू है उसको प्रिंट करता है। और अगर आप ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखिएगा तो आपका ट्रू के साथ जो स्टेटमेंट है उसको आपका शो करता है। मतलब नॉट बेसिकली क्या करता है, यहाँ नॉट मतलब ही नेगेटिव हो गया, तो एक सिर्फ बताता है क्या कि ये नहीं है ऐसा, ये नहीं है ऐसा, ये यही सिर्फ बताता है कि ऐसा कंडीशन नहीं है। तो ए क्या 8 इक्वल टू 8 ऐसा कंडीशन नहीं है, नहीं ये तो है, ये तो सही है। तो सही है तो मेरा कौन सा कंडीशन ए होना चाहिए, नो, ए वाला प्रिंट होगा। समझ में आया आपको? मतलब नॉट में अगर हम ट्रू कंडीशन को लिखते हैं तो ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, और अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, फॉल्स कंडीशन लिखते हैं, तो ये ट्रू वाला जो कंडीशन है उसको ये प्रिंट करता है। चलिए देखते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए मेरा क्या है, नॉट के साथ 8 इक्वल टू, मतलब नॉट बोल रहा है कि ये जो है इक्वल नहीं है, पर ये तो गलत है। तो इसके हिसाब से मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट जो है ए प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ इंटरप्रेट करता हूँ और देखिए नो आ गया। समझ में आया आपको? चलिए एक बार और देखते हैं। अगर हम लिखते हैं इफ नॉट 6 ग्रेटर देन 8, इस कंडीशन में क्या बोल रहा है आपका कि ये जो कंडीशन है 6 ग्रेटर देन, ये नहीं होगा। नॉट बोल रहा है कि ये नहीं होगा, ठीक, तो सही बोल रहा है। इस बार नॉट क्या है, सही बोल रहा है कि हाँ ये जो 6 जो है ग्रेटर देन 8 नहीं है। दैट मीन्स जो ए फर्स्ट स्टेटमेंट हम जो अभी लिख रहे हैं ए वाला प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पे लिखा यस, प्रिंट नो। देखिए यहाँ पे क्या, इस बार जो नॉट ऑपरेटर है वो सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है कि हाँ सही में ही ये जो कंडीशन है 6 ग्रेटर देन 8 तो नहीं है, तो यानी जो पहला वाला स्टेटमेंट है यस वो वाला प्रिंट होगा। तो देखिए यस प्रिंट होगा। ठीक, चलिए एक बार और देखते हैं। अगर हम लिखते हैं इफ नॉट 5 ग्रेटर देन 4, अब नॉट ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि ये 5 ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो वह क्या वाकई में 5 ग्रेटर देन 4 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 4 तो है, तो यानी इस बार नॉट क्या हुआ, गलत हो गया।
तो क्या होगा, वो जो अब फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, अब वो प्रिंट नहीं होगा। अब वो प्रिंट क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एल्स के साथ हम जो कंडीशन लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स के साथ, अब वो वाला प्रिंट होगा। नो, तो समझ में आया आपको कि कैसे हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ओके, तो यहाँ हमने सीखा कि पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक। और जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनका एज ए एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि इनको यूज भी कैसे करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है व्हाट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जितने भी हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, पाइथन प्रोग्राम को लिखने जितने भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ए सेमी कॉलन, ए पैरेंथेसिस दैट इज ए स्मॉल ब्रैकेट, फिर ए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, ए कॉलन, इन ऑपरेटर को हम नहीं बोलेंगे, ये ऑपरेटर को हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। ओके, तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? तो डेटा टाइप आर द काइंड ऑफ डेटा दैट इज टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ये क्या होता है, जो भी डेटा हम किसी वेरिएबल में लिखते हैं तो एक तरह का क्या होता है, वो डेटा टाइप होता है, ठीक। जैसे क्या क्या हम लिखते हैं वेरिएबल के साथ, तो न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक वैल्यू को लिखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक। ये सारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि डेटा टाइप्स मतलब वहाँ लिटरल्स हमने पढ़े थे, क्या क्या, न्यूमेरिक, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, वो सारे लिटरल्स हैं, मतलब वैल्यू थे, ठीक, वो कांस्टेंट होते हैं। बट डेटा टाइप्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए लिटरल्स और डेटा टाइप में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लिटरल्स जो हैं वैल्यूज़ हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, उन कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं। लिटरल्स मतलब क्या होते हैं, कांस्टेंट्स, मतलब उन कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज में, उनको वहाँ पे बताया गया था लिटरल्स में। बट डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि ये वेरिएबल्स के साथ किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, ये टाइप्स को बताता है कि ये किस तरह के डेटा टाइप्स वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बताता है, ठीक। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो टोटल 5 है। एक होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है स्ट्रिंग, थर्ड जो थोड़ा स्पेशल है वो होता है टपल्स डेटा टाइप, फोर्थ डिक्शनरी एंड फिफ्थ लिस्ट। ये जो 3 हैं डेटा टाइप, जो अपने अलग तरह का एक डेटा टाइप सुना, टपल्स, डिक्शनरी, लिस्ट, इनके बारे में भी हम अब जानेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन, दैट मीन्स बेस्ड ऑन डेटा टाइप, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो भी 5 टाइप्स के होते हैं। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर करता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, जो टपल्स डेटा टाइप को स्टोर करता है उसको हम लोग बोलते हैं टपल वेरिएबल, जो लिस्ट डेटा टाइप को स्टोर करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट वेरिएबल, और जो डिक्शनरी डेटा टाइप को स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी वेरिएबल। तो सिंपल आपको न्यूमेरिक वेरिएबल समझ में आ ही गया होगा, स्ट्रिंग भी समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग में क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं और सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं। अब आइए हम जो स्पेशल यहाँ जो 3 टाइप्स के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। टपल्स क्या होते हैं, तो सिंपली टपल्स आर रिप्रेजेंट एज लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज
ऑफ एनी डेटा टाइप विथ इन अ पैरेंथेसिस। मतलब किसी भी वैल्यू को अगर हम, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, उनको हम विथ इन पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके अगर लिखते हैं तो क्या होगा, एक तरह का टपल्स होगा। चलिए ये देखते हैं यहाँ पे। अब इंटरेक्टिव मोड में वर्क करें, दैट इज मीन्स एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे। तो लिखते हैं ए इक्वल टू क्या है, हम इसको किस में लिखते हैं टपल्स को, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज 4 कॉमा सेपरेटर का यूज़ किए, फिर लिखिए यहाँ पे 5, फिर कॉमा सेपरेटर का यूज़ किए। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर लिख देते हैं, सपोज लिखते हैं ए, एक तरह का कैरेक्टर लिटरल हो गया है यहाँ पे। उसके बाद लिखते हैं 5.8। अब इसे बंद करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का टपल हो गया। क्या हो गया, एक तरह का टपल। तो आइए इसका शो करते हैं, इसका टाइप क्या वाकई में टपल है। तो हम यहाँ पे अब इंटर और लिखते हैं TYPE टाइप ए। तो क्या शो कर रहा है, क्लास टपल। दैट मीन्स टपल्स को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, टपल्स में जो वैल्यूज़ होते हैं, जो 4, 5, A, 5.8, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ये फिक्स हो जाते हैं। ठीक। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कभी भी इम्यूटेबल होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, इनका वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। आइए पहले नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता है कि हम सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन जो होता है लिस्ट का वो ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे हम क्या होता है कि स्मॉल ब्रैकेट के प्लेस पे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर लिखा ए, सपोज ए नहीं बी लिखते हैं, बी इक्वल टू ए, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हमने और लिखा यहाँ पे 5 कॉमा बी कॉमा 7.8 और इसके बाद इसको क्लोज किया। तो ये क्या हो गया, मेरा एक तरह का लिस्ट हो गया। ठीक। चलिए देखते हैं टाइप इसका कि वाकई में क्या है, लिस्ट है। तो TYP टाइप बी। तो यस, इसका क्लास क्या दिखा रहा है आपको, लिस्ट। दैट मीन्स एक लिस्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिस्ट का जो अब वैल्यू होता है वो इम्यूटेबल नहीं होते हैं, मतलब इनका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक दो डिफरेंस है, देखिए रिप्रेजेंटेशन में टपल्स और लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम होता है, बस एक साइन का डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे देखने में कि यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं टपल्स में और लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। पर जो बेसिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो छिपा हुआ डिफरेंस है वो ये होता है कि टपल्स में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने कोई टपल्स यहाँ पे असाइन किया और उसमें किसी एक वैल्यू को आप सपोज 5.8 को चेंज करना चाहते हैं किसी और वैल्यू में, तो ये आप टपल्स में नहीं कर सकते हैं, ये आपका फिक्स हो गया है। एक बार आपने अगर उसको लिख दिया तो अब वो फिक्स हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट लिस्ट में सपोज आप 7.8 को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं कि वाकई में क्या ऐसा होता है कि टपल्स में वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और डिक्शनरी और जो लिस्ट है उसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोजीशन, मतलब मैंने लिखा 4, उसके बाद लिखा 5, उसके बाद ए, उसके बाद 5.8 और कॉमा सेपरेटर का यूज़ किया, तो ये सारे जो पोजीशंस है किस पोजीशन पे है, तो इसका जो पहला पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 पोजीशन। 5 जो है ये है फर्स्ट पोजीशन पे, ए जो है वो है सेकेंड पोजीशन पे, 5.8 जो है वो है थर्ड पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि जो पोजीशन स्टार्ट होता है 1 से, इसको हम लोग नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलेंगे 0 पोजीशन। ठीक। जैसे यहाँ पे टपल्स में है 4, ये 0 पोजीशन पे है, लिस्ट में है जो ये 5, ये 0 पोजीशन पे है और इसके बाद ये आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ठीक। तो हम इस पोजीशन का ही यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वैल्यू को चेंज करके। तो
तो सपोज हम लेते हैं पहले टपल्स का वैल्यू 5.8 को हम चेंज करना चाह रहे हैं सी कैरेक्टर से, मतलब हम सी लिखेंगे यहाँ पे 5.8 की जगह पे। तो हम लिखते हैं ए कौन से पोजीशन पे है 5.8, तो 0 1 2 3 पोजीशन पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। और यहाँ पे हम वैल्यू क्या शो करना चाहते हैं, तो हम शो करना चाहते हैं सपोज सी, इस वाले वैल्यू को हम वहाँ पे शो करना चाहते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करें तो देखिए क्या लिख रहा है, टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट्स इट्स असाइनमेंट, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, मतलब टपल्स आर इम्यूटेबल, वो फिक्स होते हैं, इनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ अगर हम लिस्ट में करें तो चलिए लिस्ट को हमने बी में स्टोर किया है, तो हम लिखते हैं बी, और यहाँ पे जो है 7.8 को हम लिखना चाहते हैं सपोज डी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बी और पोजीशन कौन से पोजीशन पे 7.8, तो 0 पहला होगा 50, उसके बाद बी है 1 और ए है पोजीशन 2, तो पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यानी 2 पोजीशन का वैल्यू को चेंज करना है बी में, और बी क्या है लिस्ट है, और इसको किस से चेंज करना है, तो मुझे लिखना है यहाँ पे डी लिखना है सपोज, इंटर। अब हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या वाकई में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी शो कर रहा है 5,B,7.8। अब ये क्या शो करना चाहिए, तो अब ये शो करना चाहिए 5,B,D शो करना चाहिए। देखिए हम लिखते हैं प्रिंट बी में है इसका वैल्यू, तो बी, उसके बाद इंटर। तो देखिए क्या शो कर रहा है 5,B,D, दैट मीन्स कि लिस्ट में जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एक पोजीशन की वैल्यू को, बट टपल्स में ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है टपल्स और लिस्ट में। रिप्रेजेंटेशन इनके जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एक ब्रैकेट का ही डिफरेंस होता है, बट जो इनविजिबल जो डिफरेंस है वो क्या हो गया कि टपल्स के जो वैल्यू होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब फिक्स, मतलब वो फिक्स होते हैं, बट लिस्ट में जो है वो आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये नॉन इम्यूटेबल भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस टपल्स और लिस्ट के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है हमारा जो लास्ट जो है डिक्शनरी डेटा टाइप। इसको कैसे हम शो करते हैं, चलिए इसको शो करते हैं। सपोज मैंने लिखा C=, इनको शो करने का देखिए क्या होता है तरीका। किसी भी डिक्शनरी को हम विथ इन मिडिल ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बीच हम लिखते हैं, और इनको लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ठीक, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है क्या कि डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स, मतलब ये जो होते हैं की वैल्यू के पेयर में इनको हम लिखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद A1। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा कि ए जो हो गया एक हो गया की। मैंने भी बताया कि क्या होता है की और वैल्यू, मतलब ए है एक तरह का की, और अब जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू शो करेगा 1। दैट मीन्स एक की वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो बहुत सारे की वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसके बाद लिखा बी, और जब इसे प्रेस किया जाएगा तो शो करेगा 2। इसके बाद लिखे हम सी, इसे जब प्रेस करेगा किया जाएगा तो आउटपुट आएगा आपका 3। ऐसे क्लोज करते हैं, इतना काफ़ी है। अब हम सपोज वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं बी का, मतलब बी में जो वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब इस की का यूज़ करके हम 2 को प्रिंट करना चाहते हैं।
तो हम इसको लिखते कैसे देखिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रिंट, मतलब इसका आउटपुट प्रिंट सी, सी क्या है, डिक्शनरी है, तो हम लिखेंगे सी, इसके बाद सी का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। ओके एक सेकेंड, यहाँ हम गए और लिखते हैं प्रिंट, PRINT प्रिंट, इसके बाद सी में एक वैल्यू है सी, हाँ अब सही हुआ। एक्चुअली ये क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको सही लिखना होगा। यहाँ पे आपने ऐसे लिखा है की को, तो आपको की को ऐसे ही यहाँ पे भी लिखना होगा। तो देखिए जब हमने इसको ऐसे लिखा तो इसका इस सी में क्या वैल्यू है, इसकी में, दैट इज सी क्या एक तरह की है ना, तो इसकी में क्या वैल्यू है 3 है, तो हम यहाँ पे आपका आ गया रिजल्ट क्या 3। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, जो एक की और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होता है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिटन विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो समझ में आ गया आपको कि डिक्शनरी क्या होता है। तो इस चैप्टर में आपको अभी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इन सब ये सब आपको जानने को मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हम कैसे कोडिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इतना ही। आप इन सभी टर्म्स को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, बिकॉज ये आपकी आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।